Spirituality is a space where I can completely be myself. I can connect with my being and with the one who way of being कि spirituality में आप कोई डिवाइडेड रूल फॉलो नहीं करते. मतलब ऐसा नहीं होता कि आप हिंदू है आप मुस्लिम है. You don't divide yourselves. You actually combine all the beauty of each teaching of religions और आप उसको समा के you didn't teach me in the beginning spirituality or all these beautiful things which exist in the world. She actually just gave love, and I was so impressed by the love capacity she had. Like she was giving love without any boundaries, without any expectation. निर्वाज्य प्रेम हम जिसको बोलते हैं. तो मुझे लगा कि even if I was such a child, I felt that love from her. Sahajoga is not a business. So that is why it is maybe less popular or less known to people. I have seen a lot of yoga which are for business purpose. चाहे आप लोगों को spirituality बेच रहे हो, आप religion कुछ भी बेचो, क्यों बेच रहे हो? But according to me and according to everyone who understands a little bit of spirituality, you cannot sell spirituality. It is something which is unique, it's your own, connected with your spirit, with your being. And then you can actually see through. So my journey has been very beautiful actually. I was very blessed कि मुझे भटकने की जरूरत नहीं पड़ी और ज़्यादा maybe past lives karmas, I don't know whatever. Even if people will not understand me, I've always felt that force is understanding me, and that force has always helped me to come out of situations. लोग आपके काबिलियत पे डाउट करेंगे, लोग आपके अगर आप ज्यादा काबिल हो उनसे तो वो जेलस करेंगे. There's so many things right in life, but I have seen if you are right and you are not harming anybody, if your heart is हेलो, हाउ आर यू? सो आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज वन ऑफ माय पर्सनल इंस्पिरेशन टुवर्ड्स माय स्पिरिचुअल जर्नी. हर नेम इज आनंदिता बासु. बाय प्रोफेशन शी इज अ सूफी सिंगर एंड ऑल्सो शी फॉलो सहयोग मेडिटेशन. जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये सीरीज मैंने ह्यूमैनिटी के साथ स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करने के लिए स्टार्ट की हूँ. पर वैसे भी स्पिरिचुअलिटी वर्ड आजकल कुछ ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग पता भी होगा. टू बी ऑनेस्ट, कुछ टाइम पहले मुझे भी स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग नहीं पता था. बट आई वुड से थैंक्स टू गॉड कि आफ्टर सम रिसर्च आई अंडरस्टूड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी. और जो लोग स्पिरिचुअलिटी बिलीव रखते हैं और जिन्होंने काफ़ी रिसर्च की है इस टॉपिक के ऊपर, मुझे लगता है ये एपिसोड उनके लिए काफ़ी स्पेशल और एक बोनस पॉइंट की तरह काम करने वाला है. सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द एपिसोड. So first of all, thank you so much for joining this conversation. hello. So yeah, and I'm very excited for this conversation क्योंकि जो भी मेरे सवाल है ना वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ for my personal spiritual growth. And I wish कि इस conversation का benefit जितना मुझे होने वाला है उतना ही इस वीडियो को जो भी लोग देखेंगे उन सबको हो. So yeah, can we start the conversation? Yes, let's start. Okay, so my first question is to you. According to you, what is spirituality? So for me, spirituality is the highest meta science, or you can say the epitome of discovery of human consciousness. And it is not just the mind or the physical aspects, but it is actually the discovery of an evolution process. So for me, spirituality is a space where I can completely be myself. I can connect with my being and with the one who has created everything.
So in spirituality, it is such a deep connection of the spirit and the one who has created all living beings that there is no space for other hindrance. तो मेरे लिए spirituality is the core value of existence. Yeah. तो जो हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट कैसे, ये आप सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, मेरे लिए भी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दो अलग-अलग कॉन्सेप्ट है। ये इसलिए है क्योंकि आप जिस तरह से आप जन्म लेते हो, अगर आप हिंदू घर में जन्म लेते हो, तो आपको लगता है आप हिंदू हो। अगर आप मुस्लिम घर में जन्म लेते हो, तो आपको लगता है आप मुस्लिम हो। तो ये हिंदू और मुस्लिम और जो भी अलग रिलीजियंस है, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, जो भी है, हमको ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे इस घर में क्यों पैदा किया, ताकि मैं हिंदू बन सकूं। ये कॉन्सेप्ट ह्यूमन माइंड में फिट हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि just because you are born in a family who practices one side of the preaching God doesn't make you seek the absolute. इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक मुस्लिम घर में जन्म लेती हूँ और मैं मुस्लिम ट्रेडिशंस को फॉलो करती हूँ, तो वो मेरी अपनी चॉइस है कि मैं पूरे जो ट्रुथ है, जो एक एकाकारिता है, एक यूनिक चीज जो है, क्योंकि ईश्वर को तो आप बांट नहीं सकते ना, भगवान को आप नहीं बांट सकते। यू कैन कॉल इट भगवान, अल्लाह, गॉड, whatever language you want to give to that energy, that is our limitation, that is not God's limitation. तो हम उसको अलग-अलग हिस्से में बाँट के हमको लगता है कि हम if I'm born in that family of that religion, then I belong to that religion without even questioning, without even, thinking about or trying to seek what is, the complete access to divine force. तो मेरे लिए रिलीजन जो है वो एक ह्यूमन आइडिया है, एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमें रुचि रखते हैं या तो बिकॉज वी आर born in that family, या we are influenced by some people who follows that, या there can be so many factors. तो मेरे लिए रिलीजन आपको एक कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ डिविनिटी नहीं दे सकता, because you deny sometimes the existence of other religions, or you deny the existence of the incarnations who have taken birth in different moment, in different part of the world, to express their knowledge and show us the right path. तो spirituality जो है, it's a way of being, कि spirituality में आप कोई डिवाइडेड रूल फॉलो नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप हिंदू है, आप मुस्लिम है, यू डोंट डिवाइड योरसेल्फ, you actually combine all the beauty of each teaching of religions, और आप उसको समा के you learn from everyone, and you I call it like the sangam of all the teachings. And in Shrimataji's word, we would call it the Vishwa Nirmala Dharma, which is the unified religion of a human being. तो आई फील दैट्स द मेजर डिफरेंस फॉर मी, कि आप एक में बांटते हो, एक में आप जोड़ते हो। तो रिलीजन फॉर मी डिवाइड्स फ्रॉम द रियल force, because you are only in one path and you deny it absolutely the other path. And spirituality gives you that power of uniting all the beauty of every teaching which we have. Yeah. Please share your personal journey towards spirituality. My personal journey would be, actually, I was very lucky that when I was 7 years old, I met a very influential person, a very amazing person who
didn't teach me in the beginning, spirituality or all these beautiful things which exist in the world. She actually just gave love. And I was so impressed by the love capacity she had. Like she was giving love without any boundaries, without any expectation, निर्वाज्य प्रेम हम जिसको बोलते हैं. तो मुझे लगा कि even if I was such a child, I felt that love from her. And what made me attracted towards her was the pure love. So, with the time when I grew up with her and I understood slowly, slowly, and she gave me my self realization. Her name is none other Srimataji Nirmala Devi ji. I felt, that I really could connect to myself. Whatever she was telling, I was experimenting because I didn't like this is the beauty I had with her in my life that I never just, like बोलते हैं ना कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप मान जाओ. But हम मान भी जाते थे, but I always used to experiment it like a scientist. And fortunately, that's why I said in the beginning that I'm very fortunate. And fortunately, all the experiments which she used to tell me to do, be it, mentally, physically, spiritually, or, any kind of healing you want to put in, uh, everything worked. So then I understood that, the key point is self-realization. So unless we have our self-realization is nothing but, the arising of Mother Kundalini from the central nervous system and not from the left or right channels. I mean, it's a very huge concept. It's a huge knowledge, which should not be new for the Indians because we have this in our granthas and everything. So unless we have the connection with our being, with our spirit, we cannot know, we cannot have the light to know things. It's impossible. क्योंकि आप एक आइडिया के साथ लाइफ जीते हैं और आपको लगता है मैं सही हूँ, राइट? बट अनलेस यू आर कनेक्टेड, you don't know who is right, who is wrong. You don't have that light. It's like you're walking in an empty room with full of darkness. और उसमें एक अगर कोई टॉर्च लाइट दे दे आपको तुरंत उस थोड़े से भी लाइट से आपको दिख जाता है आगे पीछे. So self-realization is that. Like, you get connected with your spirit, with your being, and then you can actually see through. So my journey has been very beautiful actually. I was very blessed कि मुझे भटकने की जरूरत नहीं पड़ी और ज्यादा मे बी पास्ट लाइफ कर्मास, आई डोंट नो वट एवर यू कॉल इट, बट मुझे बचपन में वो मिल गया चीज जो मुझे इतना सेटिस्फैक्शन और इतना गार्डेड रखा कि मुझे कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी. आई फाउंड वट एवर आई वॉज लुकिंग इन दैट. सो इट्स कॉल्ड सहज योगा. So when I found it so practical, so scientific, with the time when I grew up, then mind develops and you understand things in life. Yeah, so all the experiments worked. So it has been a beautiful journey, and being connected to my spirit has been the biggest blessing of all time, because then whatever we do, whatever I do, I feel a lot of joy and I feel a lot of satisfaction. And there's so many dimensions to it कि ये conversation में वो बयान नहीं कर सकते हम. लेकिन हाँ, my spiritual journey has been very beautiful. Of course there are challenges because we have ego, we have super ego, we have understanding, because हम सोसाइटी में रहते हैं ना. सोसाइटी भी आपको बहुत कुछ सिखाती है, तो उसमें आधा चीज सही होता है, आधा चीज आपको खुद फिगर आउट करना होता है, आधा चीज आप मान जाते हो because elders are telling you. तो उन सब के बीच में the poor soul trying to figure out, hey, I'm there करके. So it works out if you are really seeking, it works out. तो ये दुनिया में भी इतने confusions है, पर उसमें भी अगर आपका seeking strong है and you are in the right path, it works out. Yeah, so yeah, it is an ongoing journey and it will be forever, I think.
until the last breath, I'll learn and grow. ये टॉपिक ही इतना डीप और इतना बड़ा है ना कि Right, नेक्स्ट जन्म भी अगर हो जाए तो भी हम वो जर्नी खत्म नहीं होने वाली है लगता है। right, exactly. स्पिरिचुअलिटी के क्या इम्पोर्टेंस है हमारी जिंदगी में? So मुझे ऐसा लगता है कि you know, if you're spiritual, you have the boundaries set inside you. Nobody can break that. Uh, कहा जाता है कि आज के ज़माने में if you have a look around, you will see कि लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ-कुछ लोग। मतलब they have no boundaries, they have no limitation. In a dharmic way, in a how to say this? Because every word, every concept has become so twisted in the world right now. तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ किस वर्ड का यूज करूँ. But like, in our general life, everything is twisted because अभी ऐसा युग नहीं है जिसमें गलत और सही अलग-अलग दिशा में आप देख सकते हो. एक ही इंसान में गलत सही सब कुछ भरा हुआ है. So it is very difficult for the world, I feel, to have an orientation if you are not spiritual. और हम में से काफी लोग ऐसा लगता है कि if you are religious then you are spiritual. That is also a very wrong concept, right? So actually spirituality should make you free from inside completely. There's no boundary of um, there's no boundary of learning. There's no boundary of growth. But there are boundaries of dharma. There are boundaries of values. There are boundaries of your existing system. है ना? जैसे अगर मैं डिसाइड करती हूँ आज कि मैं I will not smoke. It's an example. I will never smoke. If you're a religious person, I have seen people will make compromises, but they will show to the society that they are not smoking. And they will hide it somehow. They'll hide. They have that space of hiding क्योंकि society में उनको अच्छा दिखाना है. So then you are totally not spiritual because a spiritual person will not compromise with the value system. You know what I mean? अगर आप spiritual हो, अगर आप अपने आप से जुड़े हुए हो, आप value system को जल्दी से compromise नहीं करोगे. You will think once, or you will try to like, oh, this is my boundary line. तो हम लोग आजकल फिल्म स्टार्स को फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं. But they sometimes we don't understand that human beings should have boundaries. Like every natural thing has a boundary. Like lion, share, or plants, they all have their boundaries. They follow a rule. So they feel the rules are not giving you freedom. But actually, some rules makes you be more free because it's a rule of existence which is inside. So I feel spirituality is very important because spirituality makes you strong from inside. It gives you that, value system, core values so strong inside the ethics that nothing can move you. You don't have to prove the society that you're cool just because you smoke or just because you do something. You are cool because you're spiritual. Nobody can, what can be the coolest thing to be yourself, right? So when you're yourself, and that can come only through spirituality, according to me, because you're connected with your coolness inside, right? वो So अवेयरनेस of आ course जाती है। spirituality is important. हाँ, वो awareness आ जाती है and you become a strong personality. You don't become a cabbage. You become, your own being. You are yourself. तो spirituality तो बहुत जरूरी है. उसी से हमारा core value strong होता है, I feel. Otherwise, we are ready to compromise at any point, whatever is our priority. किसी का पैसा priority है, तो वो कुछ भी करते हैं पैसे के लिए. People don't even think twice to lie or to cheat. I mean, not everyone, of course. We have, beautiful people still on earth. But I would say majority of people have become, in the rat race.
So of course without spirituality we cannot have core values established. तो अभी एक बहुत मतलब बेसिक ही क्वेश्चन है ये कि जो Okay. सहयोग मेडिटेशन है ये बाकी मेडिटेशन से इतना यूनिक क्यों है? मतलब मुझे तो लगता है कि काफी कम लोगों को, मतलब मैं जितने लोगों से मिली हूँ ना आज तक, काफी कम लोगों को पता है कि सहयोग भी कोई एक मेडिटेशन है जो लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? You know, uh, सहजोगा में हम लोग ज्यादा प्रोमोशनल योगा नहीं है वो इतना, क्योंकि इट इज फॉर द पीपल हु आर सीकिंग द ट्रुथ. तो और पता है जब आप आपको पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं होता ना, वो निर्वाज्य प्रेम जब आप लोगों को देना चाहते हो सर, एंड व्हेन यू जस्ट want to be a bit more, like, how do you say that? It's not a business. Sajoga is not a business. So that is why it is maybe, less popular or less known to people. Uh, I have seen a lot of yoga which are for business purpose, चाहे आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी बेच रहे हो, आप रिलीजन बेच, कुछ भी बेचो, you बेच रहे हो. But according to me and according to everyone who understands a little bit of spirituality, you cannot sell spirituality. It is something which is unique, it's your own. आप भगवान को कैसे पैसे दे सकते हो? You cannot, right? आप धरती माँ को पैसा दे सकते हो कि माँ मैं आपको 10 रुपए देता हूँ, आप मुझे 2 मूंगफली आज उगा के दो. Can you? You can't. So that's why Sejuga is free of cost. It is a way of living which helps you to grow naturally and not out of someone's ideas. It is a unique and natural growth process, very organic way of growing, which you can't push or force. It is a connection with directly with yourself and with the divine force. So बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य के खोज में होते हैं. People sometimes just wants to belong somewhere, but when the seeking comes, the seeking will lead you to the reality. और सहयोग यूनिक इसलिए है क्योंकि उसकी शुरुआत सेल्फ रियलाइजेशन से होती है. बहुत सारे योगास अगर आप देखोगे, they go through different kind of physical form of yoga, they call it, and they go through meditation or they go through different methods are there available. एंड सबका जो अगर आप उनसे पूछोगे, सबका पीक पॉइंट है, वी वांट टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन. So what is unique is Shri Mataji has given this beautiful way of uh, you know leading life through Sahaja Yoga, where you first have the self realization. क्योंकि वो मैं बोल रही थी ना, एक अंधेरे घर में थोड़ा सा भी लाइट होता है, आपको थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा. So mother gives that light first, because without that light, whatever we do, we are preaching outside only. We cannot go inside like that. ठीक है ना? So the beautiful thing is that you first get self-realization, you have that light, and then you start your growth. Then the light, you work on that light to grow more inside. तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उससे आपका ग्रोथ बहुत ऑर्गेनिक एंड नेचुरल वे में होता है. एंड अनदर थिंग इज देयर इज नो pushing in the process. It is up to you how much you want to develop yourself. So God is very patient, and God is very simple. He she, whatever you want to call, let's call energy or God, however it is. So if you see that, most of the things which are natural are very simple things. So सहजोगा is unique because it's not a mental concept कि आज मैं spiritual बनूंगा करके. It is unique because it actually gives you first the self-realization, and then slowly you grow. Plus, Sahajoga is the only way where the mother Kundalini can rise through the central nervous system. So we have 3 channels in our being.
In Sanskrit language, we call Ida, Pingala, and Sushumna. So in the Ida Nadi, Pingala Nadi, so Kundalini should rise from the Sushumna Nadi, which is the central channel. And that has to be someone who's authorized to do. So Shimataji is the authorized person for that. So of course it is unique. You know, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी इंसान आपको स्पिरिचुअलिटी बेच रहा है वो स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता. आप बाकी चीजें बेचो. आप अपना म्यूजिक एल्बम बेचो, आप अपना यू नो if you are making cookies, you sell that, but you can't sell spirituality. You know, spirituality is unique. It is inside you. तो इसीलिए सहयोगा is of course unique. It is अनमोल. So that is why I find a lot of difference in other yogas and Saj Yoga. Yeah. चार ऐसे पर्सनालिटी थे जो आपने मतलब बिफोर स्पिरिचुअलिटी एंड आफ्टर स्पिरिचुअलिटी आपने अपने अंदर देखी चेंज होती हुई चीजें. बहुत सारे चेंजेस हैं. सी बहुत सारे चेंजेस हैं. एज आई टोल्ड यू दैट मुझे सहयोग बहुत बचपन में मिल गया था. बट आई हैव आल्सो मेक मिस्टेक बिकॉज आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट? तो जांच परख करते करते इंसान से गलतियां होती है. बट you know, the beautiful thing is, because I was always connected to the spirituality, even if I will make mistake, I'll always come back to the point. There was a basic force which was always there with me, guiding me, helping me. तो मेरे लिए बिफोर आफ्टर्स का क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ. आई थिंक इट इज मोर अबाउट हाउ मच आई हैव फेल्ट द ग्रोथ विद द टाइम. So for me, it is a unique force of Sahaja Yoga meditation, which has always helped me to stay grounded, you know, to stay where I belong. तो हम इंसान हैं, हमें गलतियों से इतना डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए. इंडिया में हम लोग गलती करने से बहुत घबराते हैं. एंड ऑल्सो देयर इज अ ह्यूज प्रेशर ऑफ सोसाइटी कि आप गलत हो. हाँ, वेरी जजी. We live in a very judgy society, right? As if, you know, the one who is judging have never made mistake kind of a thing. But you know, in that also, I felt like, you know, even if people will not understand me, I've always felt that force is understanding me, and that force has always helped me to come out of situations. You know, लोग आपके काबिलियत पे डाउट करेंगे, लोग आपके अगर आप ज्यादा काबिल हो उनसे तो वो जेलस करेंगे. There's so many things, right, in life. But I've seen if you are right and you are not harming anybody, if your heart is clean, then that spirituality which is inside you, that you know, that beauty of love and joy which is inside you will help you always to grow. And वही difference मैंने देखा है with the time. I have grown in my confidence. पहले बचपन में शायद मुझे फर्क पड़ जाता था कि लोग क्या सोच रहे हैं. अभी नहीं पड़ता है. See, मुझे फर्क तब पड़ता है जब मैं खुद कुछ, अगर मैंने खुद कुछ you know, गलत किया है. हाँ, but when you're intentionally never wrong, then आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है. आपको you know, you don't have to feel bad about yourself, right? You're not God, so you will make mistakes. But also, when you're not intentionally doing, you are not actually making mistakes. You're learning. It's a learning process. तो मेरे लिए learning process has been very beautiful. And एक चीज जो मेरे को सहयोग की दान मैं कहूंगी उसको, वो ये है कि because of Shri Mataji's love and Shri Mataji's teachings, you know, मैंने जो देखा है एक एक एस्पेक्ट पे कैसे श्री माता जी वर्कआउट करती है इनसाइड योर बीइंग. इट वर्क्स आउट नेचुरली एंड यू ग्रो आउट ऑफ दैट. लाइक इफ आई लुक बैक एंड आई सी myself, you know, I would be a person who would like to please everyone all the time. और उसमें मैं अपने आप को बहुत खो जाती थी कि why he is not happy with me. But it takes time, right? It's a process which makes you understand कि हर कोई लाइफ में आपका भला नहीं सोच सकता. वो एक्सेप्टेंस लाना भी बहुत मुश्किल काम है.
So what people generally do, they hide their reality and they show you what you want to see. So they become a perfect ideal for the world. But it is not like that. Inside, they might be completely broken. Inside, they might be feeling jealous seeing others all the time. But they will not show it. I cannot have those kind of people as ideal in my life. You understand? मेरे लिए आइडियल इंसान वो है जो अपने गलतियों को नहीं छुपाता, जो अपने कमजोरी को नहीं छुपाता, अपने कमजोरियों को एक्सेप्ट करके उससे सीख के वो आगे बढ़ता है. दैट इज फॉर मी एन आइडियल पर्सन. तो आई बिलीव इन दैट एंड आई प्रैक्टिस दैट इन माई लाइफ. मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, सभी को, आई ऑलवेज टेल देम दैट यू हैव टू बी ऑथेंटिक. अ स्पिरिचुअल पर्सन हैज टू बी ऑथेंटिक पर्सन. सो आई फील कि ये जो ऑथेंटिसिटी है, ये जो ट्रूथफुलनेस है, ये जो एक बैलेंस है आपका जीवन में, it all comes because of meditation, yoga meditation. And you learn and you clear your chakras and you learn day by day and you grow. तो मेरे लिए ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि मैं किसी भी मिसहैप को मिसहैप नहीं मानती. एक बहुत सुंदर गाना है जो आप सबको पता होगा कि पीराणु में सीने लावा मैं ता हस्तिया जावा, दुख भी अपने सुख भी अपने ये तो मैंने जाना. तो वी हैव टू बिकम दैट होल कि हम कुछ ऐसा हो गया जो हमारे अंडरस्टैंडिंग में नहीं है और हम बहुत दुखी हो गए उस वजह से, या हमको कुछ अच्छा लग गया जो हमारे अंडरस्टैंडिंग में है, हम उससे बहुत ज्यादा सुख हो गए. तो दैट इज नॉट बैलेंस बिकॉज दुख सुख के पेंडुलम में हम घूमते रहते हैं. तो ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग्स, ऑल दिस थिंग हैज नेचुरली ग्रोन इनसाइड. It is not that I have read books for it. It is naturally grown. So that is what I'm trying to explain is ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं लाइफ के जो मुझे मेंटली सिर्फ नहीं, इमोशनली, फिजिकली, स्पेशली स्पिरिचुअली समझ में आया है. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सहज योगा मेडिटेशन एंड श्री माताजी's लव, श्री माताजी's नॉलेज. तो इसीलिए आई थिंक सहज योगा इज यूनिक बिकॉज इट इज अ नेचुरल ग्रोथ. इट इज लाइक एक सीड से एक पेड़ बन रहा है. काफी कुछ चीजें से प्रैक्टिकल वे में सिखाई जाती है. ऐसा नहीं कि मतलब थियोरटिकल जो होती है ना चीजें वो समझ में नहीं आती है, किसी को भी नहीं समझ आती है. एज अ ह्यूमन बीइंग वो माइंड ही अपना वैसे ही बनाए कि थियोरटिकल नहीं समझ में आती, प्रैक्टिकल. और मुझे भी ऐसा लगता है कि सहयोग के थ्रू सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में मतलब एक एक्सपीरियंस के थ्रू समझ आई जाती है और वो समझ भी होती है. दैट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चीजें हमें समझनी है. काइंड ऑफ पजल. या लाइक मतलब मोर देन पजल, इट्स योर इंटरेस्ट. आप समझना चाहते हो कि नहीं. वही मैंने पहले बताया ना, काफी लोग बिलोंग करना चाहते हैं कहीं के क्योंकि फैमिली बिलोंग करती है. अंडरस्टैंडिंग कि आप अगर सहयोग भी कर रहे हो बिकॉज योर पेरेंट्स आर डूइंग सहयोग, यू आर बिलोंगिंग टू इट, यू डोंट ओन इट. यू अंडरस्टैंड. तो इसीलिए आपको समझ के करना चाहिए. आप जो भी कर रहे हो उसको समझ के करो कि क्या है. तो बिलोंगिंग से हमें कभी भी अपने आप को नहीं, वी कैन नॉट बिलोंगिंग ढूंढने से सिर्फ हम अपने आप को नहीं ढूंढ सकते. एक्चुअली वी बिलोंग टू आवरसेल्व्स. वो एक्सपीरियंस करना ही सहयोग है. जो लोग रिलीजियन बिलीफ रखते हैं और एक डेली रूटीन में एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी वो ऐड करना चाहते हैं अपने लाइफ में, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से स्पिरिचुअल एक्टिविटी वो अपनी डेली रूटीन में लाए, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखो, अगर आप रिलीजियस हो, आप किसी धर्म को मानते हो, तो दैट मीन्स डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो ढूंढ रहे हो, ऐसा मुझे लगता है कि तो आप जिस भगवान को भी मानते हो, अल्लाह को मानते हो या श्री राम को मानते हो, श्री जीसस को मानते हो, मोहम्मद जी को मानते हो, किसी को भी मानो, आप उनसे उस इनकारनेशन से ही मांगो कि शो मी स्पिरिचुअलिटी,
श्री राम ने तो हिंदू धर्म का निर्माण नहीं किया था ना, या मोहम्मद जी ने मुस्लिम धर्म का निर्माण नहीं किया, ना ही जीसस जी ने क्रिश्चियनिटी को जन्म दिया। ये सारे हम लोगों ने किया है, ह्यूमन ने किया है। तो आप इनकारनेशन को भी प्रीच करोगे ना, तो वो आपको रास्ता दिखाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? बिकॉज ऑल द इनकारनेशंस बिलीव्स इन यूनिटी, दे डोंट बिलीव इन सेपरेशन। आप कुरान पढ़ लीजिए, आप गीता पढ़ लीजिए, आप बाइबल पढ़ लीजिए, ओरिजिनल की बात कर रही हूँ, लोगों का माइंड का नहीं। आप पढ़ोगे उसमें वही कहा गया है कि हम सब एक है, वी आर वन। तो इफ वी आर वन देन देयर इज नो अदर। तो आप जिसको भी मानते हो, आपका एक विश्वास होता है इंसान का ना, कि मैं श्री राम के भक्त हूं। तो जब आप उसको विश्वास करते हो, आप उस विश्वास से मांगो कि श्री राम मुझे आप सही मार्ग दिखाइए। और जब वो मार्ग दिखाएंगे, उसको फॉलो करना भी फिर हमारे ऊपर है कि हम उसको प्रीच कर पा रहे हैं कि नहीं। तो easiest way to do that is you get your self realization. If you will get your self realization, जब वो अंधेरे कमरे में आपको थोड़ा सा भी प्रकाश आएगा, then automatically slowly you will see the things, you will feel it in your subtle system, you will live it. तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप जिसको भी मानते हो, you preach that. मैं इनकारनेशंस की बात कर रही हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो इंसान होके भगवान होने का नाटक करते हैं। मैं इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकारनेशंस। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री जीसस, श्री मोहम्मद जी, है ना? ऐसे बहुत जन है। या सदगुरु है, सदगुरु में है अपने गुरु नानक जी है ना? कितने सारे हैं। मतलब इंसान को ये सदगुरु लोगों ने बना दिया है, तो फिर एक कंफ्यूजन है ना लोगों के भी दिमाग में कि क्या सही है। वही है कि जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं मिलेगा तब तक वो राइट, समझ नहीं आएगा। क्योंकि हाँ, अभी वो काफी समझ, चीजें अभी, स्पेशली जो हमारा सोशल मीडिया है, जो टेक्नोलॉजी अभी आई है, उससे तो और ज्यादा कंफ्यूजन। मतलब पहले के लोगों में शायद क्लियरिटी थी कहीं ना कहीं, वो कंफ्यूजन नहीं राइट, था। अभी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। अभी तो जो दैट इज चीज द सही गेम, है वो भी राइट। गलत। या अभी दैट्स तो द जो गेम, सही है वो भी गलत लगती है ना चीजें, वो एक राइट। काफी। हाँ, और एक चीज भी करती है ना मीडिया कि उनको जो बेचना होता है, वो उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में। तो जैसा कुछ अगर गलत है, वो इतने बार दिखाएंगे मूवीज में या कुछ उसमें कि लोग भी डाउट करने लगेंगे, या शायद मैं ही ट्रेडिशनल सोच का इंसान हूँ, एंड आई शुड बी मॉडर्न एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। तो वही मैं बोल रही थी ना, बाउंड्रीज नहीं है लोगों में अभी, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है क्या गलत है। और जब तक आपका खुद का स्पिरिट के साथ कनेक्शन नहीं है, आप सही गलत की पहचान कैसे करोगे? पहले के जो लोग थे, वी वर वेरी सिंपल पीपल एक्चुअली इन द बिगिनिंग, सो वी कुड टॉक विद गॉड डायरेक्टली। अगर आप रामायण देखोगे, महाभारत देखोगे, हर युग में एक इंकारनेशन तो आता ही है। तो वी कुड टॉक डायरेक्टली, so दैट वाज इजियर फॉर अस, लेट्स से। लेकिन अभी कलयुग के बाद सत्ययुग वैसे तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी कलयुग का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है। तो उसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि पीपल डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। अरे वो भी कर रहा है तो मैं भी करूंगा, इसमें गलत क्या है? इवन इफ आई सी माई फ्रेंड्स एंड आई आस्क देम कि why you did that, they say what is wrong in that. So that has become the attitude of the person. क्योंकि आपको अंदर से सही गलत का वो बार जो है ना, आपने फिक्स नहीं किया है, इसलिए वो रियलाइजेशन के बिना आपको नहीं समझ में आएगा। एंड दे आर गुड पीपल, इट्स नॉट दैट दे आर बैड पीपल, सो मेनी पीपल आर गुड पीपल ऑन अर्थ। और बेचारे मतलब वो दे आर नॉट ओरिएंटेड, दे हैव लॉस्ट देयर वे समहाउ। तो आई फील सहयोगा मेडिटेशन से you can really get a orientation about your life, about your being, and be very joyful and satisfied with what you are. I think that is the most biggest success of a human life, right? To be satisfied and to be joyful and happy in your life.
ये सबसे टफेस्ट जॉब है एक ह्यूमन बीइंग के लिए कि राइट। सेटिस्फैक्शन वो कहाँ से मिलेगी। और अभी जैसे कुछ पॉडकास्ट भी मैंने देखे हैं, तो काफी लोग वो साधना वगैरह आपने कभी सुना है, साधना के थ्रू वो चीजें कनेक्ट होते, गॉड से मिलते हैं, भगवान किसी भी भगवान से जिनको उन्हें बात करनी होती है उनसे बात करके वो साधना के थ्रू। तो ये आई थिंक तांत्रिक विद्या में ही आती है वो सारी चीजें। देखो उसके मेरे थ्रू लिए मोस्टली हाँ, सहयोग में मुझे ऐसा लग रहा है ना काफी लोग उसके थ्रू जा रहे हैं जबकि सहयोग में काफी चीजें आसानी से मिल रही, बट लोगों ने वो टफ चीजें को ही वो लोग फॉलो कर रहे हैं। राइट राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी वाया जाओगे ना, आपको समय ज्यादा लग जाएगा। और समय सिर्फ मैं इस जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, काफी जन्म लग जाते हैं जब आप वाया भगवान से बात करते हो। अब वो वाया टेलीफोन कम्युनिकेशन कितना सही है वो भी आपको पता नहीं होता है, आप बस विश्वास के तरीके पे आप किसी को मान लेते हैं। बट व्हेन यू गो डायरेक्टली, आप डायरेक्टली भगवान को फोन कर सकते हो, तो आप वाया क्यों जा रहे हो? भगवान हम सबके हैं, है ना? गॉड इज फॉर एवरीबॉडी एंड God is very kind. So He has given the system of mechanism of connecting inside us, which is the self-realization, which is dialing the number of Mother Kundalini. तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप वाया नहीं जाओ किसी के थ्रू, आप अपने आप से जुड़ो, सहयोग को एक्सपेरिमेंट करके देखो, एंड यू सी हाउ ब्यूटीफुली यू कैन टॉक टू गॉड। तो और मुझे लगता है सहयोग एक एक्सपेरिमेंट ही है, काफी कुछ चीजें श्री माता जी ने प्रैक्टिकल वे में समझाई, इसलिए शायद मैं भी जुड़ी सहयोग से इसीलिए हूँ कि क्योंकि जैसे आज की हमारी जो जनरेशन है ना वो प्रैक्टिकल चीजों पे ही विश्वास करती है, ऐसे नहीं कि थियोरटिकल या वो ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं करना है हम लोगों को। राइट कि राइट। साधना जैसे अभी साधना के ऊपर काफी टाइम बिताने के बाद फिर वो कनेक्शन जो होता है भगवान से, फिर भगवान आके बात करते, ये सारी चीजें मतलब तो वो एक बहुत ही टफ जॉब मुझे लगता है। वो पता है पीछ पहले के जमाने में that would have worked when people had Himalayas, you know, they would leave the world and go. But that is what we are trying to say, that Shri Mataji has made spirituality very easy for us, easily accessible. तो आपको भी सब छोड़ के साधना करके वो पाने की आवश्यकता नहीं रही है। Shri Mataji have given a new dimension to the evolution process. She has first given us our self-realization. तो आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप पहले जिस चीज को आपको जो आप रास्ता ढूंढ रहे हो ना उसको पाने की, वो पहले आपको प्राप्त होता है। देन यू क्लीन योर सेल्फ, देन यू नो क्लियर आउट ऑल योर 6 enemies of the soul, and then you clear out slowly slowly, automatically it works, क्योंकि वो लाइट का हेल्प आपके पास है, वो एनर्जी का हेल्प है। पिछले जन्म या जो भी लोग साधना करते थे हिमालय में जाके सब छोड़ के, they didn't have that help of that कुंडलिनी एनर्जी ऑलरेडी रोजन। वो बहुत कुछ करके हजारों में एक जन को कुंडलिनी शक्ति का एहसास होता था। तो वो श्री माता जी ने पूरे मासेस के लिए इजी कर दिया है। इससे बड़ा चमत्कार लाइफ में और क्या हो सकता है? और मैंने काफी ऐसी चीज सुनी है, एक्चुअली वो ट्रू भी है कि कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करना इतना आसान नहीं है और उसके भी काफी सारे साइड इफेक्ट भी है। और श्री माता जी ने वो इतने आसान से मतलब वो वहीं से दिखाई देती है कि वो कौन, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो वो चीज कर ही नहीं सकता। कुंडलिनी शक्ति अगर सब लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी पावर है, तो मुझे नहीं लगता कि जैसे कि हम डाउट लेते हैं ना कभी कभी कि श्री माता जी सच में मिलाने से है या फिर मतलब जैसे बाकी लोग कह रहे हैं इसलिए हाँ में हाँ मिला रहे, तो वो वहीं से स्टार्ट होती थी कि अगर हम जैसे नॉलेज गेन करते जाएंगे ना हर चीज का, तब वो यकीन होती कि हाँ ये अगर ये चीज हो रही है प्रैक्टिकल वे में, तो फिर वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, फिर डेवलप होता है। Right. Yeah, of course. I mean, see, that's why I said Shivaji is the authorized person to raise Mother Kundalini, because it has to raise
फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। काफी लोगों को मैंने देखा है, सुना है कि उनको कुछ हल्का महसूस होता है कभी, यू नो, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हाँ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टिंगलिंग हो रहा है, वहां पे टिंगलिंग हो रहा है। बट यू नो, मदर कुंडलिनी ओनली रेजेस थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आप कहीं पे भी किसी अगुरु के पास चले जाते हो जो आपको लेफ्ट या राइट चैनल से कुंडलिनी, तो वो दैट इज नॉट ऑथराइज्ड वे एंड दैट इज डेंजरस। सो इट हैज टू बी अ पर्सन हु हैज द फुल नॉलेज। हम्म। तो इसीलिए सहयोग इज यूनिक बिकॉज आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से माँ कुंडलिनी चल रही है एंड यू कैन फील इट, you will feel the difference. So yeah, it's a world of interest right now. So it's very difficult to talk about truth, even to talk about reality, because before talking about it, you have to clear out so many clouds. तो इसीलिए बेस्ट होता है अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन ले लो, देन वी कैन टॉक अबाउट इट, बिकॉज वंस यू आर वन विथ योर स्पिरिट यू विल नो। क्योंकि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से बात नहीं करते ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम आज आप मेरा खाना हजम कर दो, वो ऑटोमेटिक है। वैसे ही माँ कुंडलिनी के जागरण से ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। तो इसीलिए आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट आवर सेल्फ रियलाइजेशन। या स्पिरिचुअलिटी में हम माइंडफुलनेस और थॉटलेस जो स्टेज है, स्थिति होती है, वो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं? तो जब हमारा सेल्फ रियलाइजेशन मिलता है हमें, सो इट ऑटोमेटिकली रिलैक्सेस आवर नर्व्स। क्योंकि ये एक पावर हाउस ऑफ एनर्जी है जो हमारे सैक्रम बोन में होता है, सैक्रम सेक्रेड। और वो जब चढ़ती है तो इट ऑटोमेटिकली दिस एनर्जी रिलैक्सेस and shows us all the things, all the nerves which has to be cleared out or to be relaxed. तो ऑटोमेटिकली हमको एक थॉटलेसनेस की अनुभूति होती है। क्या होता है जनरली, एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में छोटा सा एक गैप होता है जनरली। तो जब आप असल में मेडिटेशन की स्थिति में आते हैं तो वो एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में जो गैपिंग है वो बढ़ता रहता है, ऐसा होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग मेडिटेशन करके उसको एक्सपीरियंस करें, उसको एक्सपेरिमेंट करें। और एक्चुअली माइंड हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी, द ब्रेन इज रियलिटी नॉट द माइंड। क्योंकि जो सोच होता है ना वो हमारा खुद का बनाया हुआ एक काल्पनिक विद्या है, उसमें रियलिटी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। आप खुद ही सोच के देखो, आप जो भी सोचते हो वो आपके अपनी काल्पनिक सोच है, राइट? देन सम ऑफ अस मेक इट बिगर, मेक इट स्मॉलर, जिसको हम ड्रामा का नाम देते हैं लाइफ में। and then and the people are earning crores with the drama, selling it in the television, because we feel we are connected with it, because they are just putting our mind that कि हाँ यही है, but that is not reality. तो वैसे ही call it a mindfulness, I think it is a thoughtlessness, कि आप अपने एक थॉट के बीच और दूसरे थॉट के बीच में जब भी गैपिंग बढ़ाओगे तभी तो आप रियलिटी में पहुंचोगे। वो गैपिंग तो दोगे ना कि आपको अपनी एनर्जी, आपका आत्मा आपको बोले कि बेटा देख ये सत्य है। वो गैपिंग हम देते ही नहीं है ना, हम अपने ही कल्पना में डूबे रहते हैं। तो मेडिटेशन हेल्प्स यू टू इंक्रीज दैट गैप। ये सबकी अलग अलग जर्नी हो सकती है, किसी को जल्दी हो जाती है। मतलब एक होता है ना, अभी जैसे हमारी जो जनरेशन है, हमें करियर का बहुत ज्यादा होता है कि कब होगा, क्या होगा, काफी मतलब फ्यूचर से जो थॉट्स होते हैं वो आते रहते हैं, कब होगा, वो क्वेश्चन होता है कब होगा। तो वो थॉट्स कहीं ना कहीं आ ही जाते, कितना भी कोशिश कर लो कि नहीं बट वो आ ही जाते कैसे भी करके। अगर नहीं आई तो आपको सोसाइटी तो जरूर दिला देगी। एग्जैक्टली।
वही है। और एक्चुअली वो भी एक होता है ना, बैक ऑफ द हेड कि लोग क्या कहेंगे अगर कुछ नहीं हुआ, इतना कुछ कर रहे हो फिर भी अगर मेडिटेशन से आपको कुछ मिल नहीं रहा, आपकी करियर ग्रोथ नहीं है, तो फिर वो भी वो एक बैक ऑफ द हेड होता है ना कि क्या कहेंगे लोग। जैसे कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हमारी जिंदगी में तो कुछ मतलब वो करियर, आज के टाइम में मुझे लगता है करियर ही सबसे बड़ा एक हमारे लिए हो सकता है, पोजीशन कुछ नहीं है बट एक है, माइंडसेट है कहीं ना कहीं, वो हम या ऑफ कोर्स है। इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज को कि मतलब स्पिरिचुअलिटी में आके वो चीज एक होता। See, that is the thing. You don't have to ignore anything. You have to be yourself. थॉट्स आ रहे तो आ रहे हैं. क्वेश्चन इज नॉट कि मुझे ये थॉट क्यों आ रहा है तो मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं. दैट इज नॉट नेवर लाइक द पॉइंट. द पॉइंट इज अगर आपको ये थॉट्स आ भी रहे हैं आप उसको बैलेंस में कैसे लाओगे. दैट इज सच होगा. क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग बनना बनना तो नहीं छोड़ सकते ना. आपके अंदर जो कुछ भी है, आप परफेक्ट ह्यूमन बीइंग तो सिर्फ श्री राम बन सकते हैं. बट हम लोग नहीं बन सकते. हम लोग गॉड थोड़ी है. हम लोग इंसान है. आप उसको एग्जाम्पल मान के आप परफेक्शन की तरफ बढ़िए. वो हो सकता है. तो एज अ किड, एज अ एवरी वन इन देयर ओन एज हैज देयर ओन challenges because of parenting, because of society, because of school pressure, whatever it is. हमें सिखाया गया है कि आपको रैट रेस करना है. और तो जब आप मेडिटेशन करोगे ना, जब आप सहयोग के थ्रू अपने आप को जानोगे तो आपको ये प्रेशर प्रेशर नहीं लगेगा. ये मेरा एक्सपीरियंस है. और लगेगा भी तो आपके पास ये पावर, व्हेन यू विल प्रीच दैट पावर विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू. दैट पावर विल नॉट लीव योर हैंड. वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ. आप ऑफकोर्स एंड यू हैव टू बी गुड इन योर कैरियर ना. हम लोग सब कुछ छोड़ के अगर बैठ जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा लाइफ ना. वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो. या सो स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के आप राम नाम जप रहे हो. दैट इज नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन. A spiritual person is very responsible about their society, about their life, about family, about everything. But a spiritual person is a balanced personality. आप ओवर कुछ नहीं करोगे. थोड़ा सा फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी जरूरी है, बट ओवर प्लानिंग इज बैड फॉर यू. यू अंडरस्टैंड. जैसे आज तुमने मुझे बुलाया है मीटिंग पे, अगर हमने इसको थोड़ा पहले से पता करके बताया नहीं होता कि दीदी आपको यहाँ पे आना है, तो वो तो प्लानिंग लगा ना उसके लिए. तो ओवर प्लानिंग थोड़ी था. वैसे ही हर चीज को पाने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग की आवश्यकता होती है. बट वेन यू आर कनेक्टेड विथ योर बीइंग, when you're connected with your spirit, it becomes a smooth process for you. You don't have to overdo things. You don't have to over pressurize yourself. You don't have to over push your being, and then you uh, try to achieve something. It becomes an easy process for you. तो वो है सहयोग. सहयोग is all about balancing your life. फिर माता जी से जुड़ी एक कोई कहानी या एक्सपीरियंस. Wow, there's a lot of experiences with her. Um, देखो, personal experiences तो बहुत है, but I think what I felt unique about her experience is that she never failed to give love to everybody equally. I think that is the highest achievement I would say a spiritual leader can have, is to genuinely, authentically give love to every human being on earth. ये चीज मैंने और किसी में भी नहीं देखी है. There might be examples in front of us who have done some great work for humanity, but Shivadaji is the only example for me who is perfect in every way. I have not seen anybody else like that in my lifetime. तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि मैंने आज तक उनके जैसा परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं देखा है.
In every aspect, she was a milestone, which made me realize that she cannot be just a human being. So one unique thing about mother is that she gave love to every human being equally, निर्वाज्य प्रेम. और वो चीज मैंने पहले कभी किसी को करते हुए नहीं देखा है. I mean, we all love people, we all love someone, or we all love each other, but like very few people knows to love everyone actually. तो वो एक माँ है, तो वो माँ का जो स्वरूप है मैंने वो बहुत ज्यादा देखा है. एक कहानी ये याद आती है कि अभी जस्ट इन फ्रिक्शन में याद आ गया कि हम लोग सब शिमाला जी के साथ बैठे हुए थे, और मैं कब आपके एज में होंगी, एंड देयर वाज अ guy who wanted to climb the mountains and he didn't have legs. तो श्री माता जी बोल रहे थे उसको, बेटा आप नहीं चढ़ सकते, आपके पैर नहीं है. Then this guy was insisting कि नहीं, मैं तो चढ़ सकता हूँ, मैं तो चढ़ सकता हूँ, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे मैं चढ़ सकता हूँ ऐसा. तो माँ हम लोग को पूछ रही थी, इनको समझाओ कि वो नहीं चढ़ सकते, आपको क्या लगता है. तो वी वर सेइंग, शिवाजी जी इफ यू वांट ही कैन क्लाइंब. हम भी वही बोल रहे थे. फिर ऐसा बहुत देर हुआ, एंड देन व्हेन लास्टली शी आस्क्ड कि आप लोगों को क्या लगता है. तो she said, Shimata ji, if you want, if the divine want, he can climb. And then Shivaji just laughed, and she said, never forget that. तो हमको यही सीख मिलती है कि डिवाइन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. वो हमारी सोच है, हमारी लिमिटेशंस ऑफ ब्रेन है, जो हमें लगता है कि नहीं ये ऐसा है, इतना दूर है, ये जो भी है, कितने सारी चीजें हैं. बट एक्चुअली अगर आप चाहते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है. तो इसीलिए जब आप डिवाइन से जुड़ के कुछ भी चाहते हो, वो जरूर फल होता है उसका, especially when it is for a higher purpose. ट्रू. स्पिरिचुअलिटी के थ्रू सोसाइटी में क्या चेंजेस हम ला सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हम सोसाइटी में बहुत चेंजेस ला सकते हैं. जब आप स्पिरिचुअल बन जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको किसी को डिसिप्लिन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद डिसिप्लिन हो जाओगे. आप जो अच्छे रूल्स है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करोगे. जैसे इंडिया में कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता, जस्ट सेइंग आउट ऑफ जोक, बट लाइक आप ऑटोमेटिकली यू बिकम अ बेटर सिटीजन ऑफ योर कंट्री, because you are you are towards the growth in every aspect, and you understand the fact that a country's growth is not only on its GDP or on its economic field. A country's growth is always how the emotional, physical and mental well-being of a person is. And when you are spiritual, all those aspects automatically gets aligned with you. And then you become a better society, hence you become a better country. आज तुम देखो, जो भी कंट्री स्पिरिचुअलिटी के बगैर एक ही डायरेक्शन में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बढ़ा है, they all have faced crisis in their life. Europe has faced crisis, and there's so many countries, I mean, not to mention one. तो मुझे ऐसा लगता है, I have felt it कि it is not only the growth in your technology and the things you have with you, the material outside things. I think a growth of a society, of a country depends on the people's inside. अगर हम अंदर से spiritually strong है, तो हम lifetime long के लिए we will be a developed country, and we will, when we face this bang of things which disturbs the whole society, तब आप इतना ज्यादा लुढ़क के गिर नहीं जाते हो. You become very highly, strong moral values, and you become a very developed society. So automatically spirituality helps you to do the right thing. So automatically you have
blessings of the force with you. ट्रू। और अभी ये काफी इम्पोर्टेंट सवाल है कि स्पिरिचुअलिटी में तो हम आ गए हैं, मतलब मेडिटेशन भी फॉलो करें अच्छे से, सब कुछ सही हो रहा है, मतलब जो जो चीजें लोगों ने कही है, जो हमारा फेथ भी है वो हम सब कर रहे हैं, बट ये कब और कैसे समझ में आएगा कि स्पिरिचुअली हम ग्रो हो रहे हैं? ये काफी इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे। उसके काफी सारे एस्पेक्ट आएंगे आपको। इसका बहुत सारे डायमेंशंस है, वो कोई एक डायमेंशन में मैं नहीं बोल सकती आपको। स्पिरिचुअल ग्रोथ के आपको काफी लक्षण आएंगे। यू विल फील वेरी लाइट, यू बिकम वेरी जॉयफुल पर्सनैलिटी। कितने बोलूं आपको, ये समझ में आएगा कि आपको तीन ही बता दो। तीन तीन तो बहुत कम है। मतलब काफी सारे है ना, तो तीन बेसिक। हाँ, you become very, very free from inside, you know. I think that is the biggest blessing of spirituality. You become so free. Freedom का जो असली मतलब है वो आपको समझ में आता है when you are, connected with your spirit. एक तो वो है। दूसरा है आप peace. You become a practitioner of peace. You become a real practitioner of peace in every aspect of your life. ऐसा नहीं कि मंदिर में जाके जो पुरोहित है वो पूजा कर रहा है एंड घर में आके मारपीट कर रहा है, तो that is totally not, you're not practicing what you preach. तो मुझे लगता है spirituality gives you the force to practice what you aim to achieve in your life. काफी लोगों को पता नहीं होता कि हमको पीस प्रैक्टिस कैसे करना है। दे वांट पीस बट दे डोंट नो हाउ टू प्रैक्टिस पीस। तो स्पिरिचुअलिटी एंड कनेक्शन, सेल्फ कनेक्शन से आपको डेफिनेटली यू कैन अचीव पीस, एंड आई वुड से द स्ट्रॉन्गेस्ट थर्ड पॉइंट इज you become very satisfied person. You become satisfied with what you have, and you lead a very happy life, a very balanced person. You're not overdoing things, and you just become very, I don't know, like you become a very successful person. I would call it like that. From inside. No, but that's the thing. If inside you are successful, automatically your outside is successful. मैंने तो कभी नहीं देखा है कि पैसा आपको खुशी दे सकता है। आई हैव नॉट सीन दैट, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो। वो एक मिथ है कि हमको पैसा ज्यादा मिलेगा तो हम खुश होंगे। इट कैन गिव यू कैन एक्यूमुलेट मोर डेड थिंग्स विद पैसा, विच आर नॉट लिविंग थिंग्स। पैसे से हो सकता है, बट दैट कैनॉट, आई मीन अल्टीमेटली एवरीवन शुड हैव द सोल सर्चिंग। तो मुझे लगता है जब आप स्पिरिचुअलिटी विद सेल्फ रियलाइजेशन, इट इज नॉट ओनली बीइंग स्पिरिचुअल, क्योंकि हम स्पिरिचुअल के उसमें भी अगर हम कुछ कॉन्सेप्ट में खो गए, देन आई डोंट कॉल इट अ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रैक्टिकल लिविंग प्रोसेस। तो जब तक हम सेल्फ रियलाइजेशन की प्राप्ति ना करके हम अपने शक्ति से न जुड़ के चीजें करेंगे, एवरीथिंग इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। तो मुझे लगता है ये तीन चीजें सबसे मेन होता है, एंड ऑटोमेटिकली if you are satisfied, you are happy, you are joyful in everything you have in your life, I mean, man, that's the biggest achievement of a lifetime award. I mean, tell me a few names who are like that. तो इसीलिए I think it makes you, if I should mention more, just in case, it makes you authentic, it makes you practical. सबसे जो बड़ा, जो मुझे लगता है डिटैचमेंट, काफी लोगों को लगता है ना कि कैसे हो ये मतलब एक काफी बड़ा कंसेप्ट है, बट कहने में तो बहुत मतलब ऐसे है कि हाँ डिटैच हो जाओ, बट इट्स नॉट इजी फॉर अ ह्यूमन। नो, वही ना, वो कॉन्सेप्ट फॉलो करने से नहीं होगा ना, यू हैव टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट। So everything is a practice. See,
मैंने सुना है बहुत बार लोग बोलते हैं अरे तुम सब छोड़ दो, डिटैच हो जाओ, बट हाउ टू डू इज अ प्रोसेस, राइट? तो वी शुड बी एबल टू एक्सेप्ट दैट प्रोसेस कि हाँ मैं अभी प्रोसेस में हूँ, सीख रहा हूँ, तो दैट इज ऑथेंटिसिटी। कि ऐसा नहीं कि मैं ध्यान करता हूँ तो आई एम परफेक्ट ऑलरेडी, दैट इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट पीपल हैव, यू नो। सो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हमें हमेशा we should become, you know, as much genuine as possible. Then only it is so, everything is so interconnected, right? Yeah, true, true. तो एक दूसरे को लीड करता है, दूसरा तीसरा को लीड करता है, and then you know you all grow together. Yeah, True. ऐसा है। और एक और चीज भी है ना, सॉरी टू इंटरप्ट, एक और चीज भी है ना, हमारे इंडियन सोसाइटी में हमको डिटैचमेंट का मतलब जो है वो ये सिखाया जाता है कि आप सब छोड़ छाड़ के आप वनवास ले लो तो यू आर डिटैच। हाँ, तो यू आर डिटैच। इट इज वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। दैट इज नॉट व्हाट श्री कृष्णा मेंट, नेवर। ट्रू। काफी मतलब श्री राम जी है तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी भी फैमिली थी, मतलब सारी चीजें जो थी वो फैमिली के थ्रू ही हुई है। I call it escapism. You know, it's an escape. It is an easier way. That's why you live. You escape. तो डिटैचमेंट का वो मतलब नहीं होता है, एक्चुअली गीता में भी वही लिखा हुआ है। डिटैचमेंट का रियल मतलब है आप अंदर से डिटैच, आपके पास सब कुछ होता है, मुझे लगता आपके पास सब कुछ हो सकता है। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि डिटैचमेंट कहीं ना कहीं सरेंडर से जुड़ा हुआ है, फेथ और सरेंडर से। अगर आपका फेथ और सरेंडर है आपको किसी चीज को लेके, किसी भी भगवान को लेके, तो मतलब आप डिटैच अपने आप हो ही जाओगे, क्योंकि एक होता है ना विश्वास होता है अंदर से कि वो है ना, वो संभाल लेगा, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो वो एक फेथ से मुझे लगता है डिटैचमेंट अपने आप आ ही जाता है कि वो है ना, वो हो जाएगा। नहीं, it helps. But you know, I have challenged myself with detachment many times. मेरा एक बहुत फेवरेट ईयरिंग था जो मैं कभी किसी को देने का सोच भी नहीं सकती। It is a very small thing I'm talking. Of course, I've challenged myself in many other ways. But एक मेरा बहुत फेवरेट मुझे एक पाकिस्तानी फ्रेंड ने मुझे एक ईयरिंग दिया था। तो आई वॉज वेरी यू नो अटैच विद दैट थिंग, और किसी को बहुत वो पसंद आ गया, एंड शी वाज एडमायरिंग इट लाइक डेज। तो मुझे ऐसा लगा ना आई शुड गिव इट टू हर बिकॉज इट इज, यू नो, शी इज लविंग इट सो मच। तो मैंने वो खोल के दे दिया। तो कुछ देर तो मुझे लगा ओ माय गॉड आई एम लूजिंग, एकदम ऐसा लगा आई एम लूजिंग, आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ, यू नो। And then I said myself, man, this is just a material thing. Why we can't? I mean, look at the love she will feel when I give it to her. करके. So I challenged my feeling. I challenged my liking on it, you know. And I was successful. तो उसके बाद मुझे बहुत आनंद आया कि यार जो चीज को मैं पकड़ के इतना बैठी हुई थी उसको मैंने जब छोड़ा तब मुझे उससे ज्यादा आनंद आया। पर मुझे लगता है हम लोग उसको ना, वो छोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है हम उसको ले नहीं पाते हैं। वी कैन नॉट हैंडल इट। फेसिंग आवरसेल्व्स इज अ बिग थिंग फॉर अस। हम अपने आप को फेस नहीं कर पाते हैं। डर होता है कहीं ना कहीं, अगर वो दे दिया और उसने कुछ कर दिया उस चीज का, मतलब किसी ने हमें दी है वो चीज प्यार से, वो काफी सारे थॉट्स होते हैं बैक ऑफ द हेड। इंटेंशन एकदम प्योर होती है, बट कहीं ना कहीं वो डर ही है ना कि क्या होगा फिर। डर है और अटैचमेंट है, ये मेरा है, मेरे पास होना चाहिए। You know, there's so many things which can go around the human mind, right? तो वैसे ही मुझे लगता है लाइफ में बहुत कुछ अपने आप को हमको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके चैलेंज करना चाहिए। Then only we grow, otherwise not possible. ग्रैटिट्यूड, कंपैशन और फॉरगिवनेस, ये तीन जो वर्ड है स्पिरिचुअलिटी में काफी ज्यादा हम पावरफुल मानते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, मतलब एक सिंपल शब्दों में बताओ, जिन्हें शायद नहीं पता है, काफी लोगों को पता भी होगा, बट एक होता है ना, एक बहुत ही मतलब क्या कहूँ, एक जेंजी जो हमारी जनरेशन है उनके लिए मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ स्पेशली, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा अभी कंफ्यूजन में आने वाले हैं या है ऑलरेडी, तो उनके लिए ये स्पेशली।
I feel, every day we wake up in the morning and we learn so much in life. We should be grateful towards it. So I feel gratitude should be a part of our life. मुझे ऐसा लगता है इंडियन सोसाइटी में हमें थोड़ा सा कम इसे सिखाया जाता है. मैंने ये वेस्ट से ज्यादा सीखा है to how to say thank you. So आई फील कोई भी छोटे से छोटा जेस्चर जो भी आपको हृदय से कर रहा है, वी शुड से थैंक यू. मैंने बहुत बार सुना है इंडिया में कि लोग बोलते हैं अरे थैंक यू मत बोलो, थैंक यू बोलने का क्या है. फॉर्मेलिटी. हाँ, अगर वो फॉर्मेलिटी तब है जब आप हृदय से नहीं कर रहे हैं. अगर आप सच में हृदय से आप किसी को थैंक यू बोलना चाह रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. तो और मुझे लगता है फिर आपका हृदय भी खुला रहता है. दैट पर्सन फील्स सो हैप्पी अबाउट इट. एंड ऑल्सो यू आर ग्रेटफुल, यू वैल्यू एवरी हेल्प यू गेट फ्रॉम एवरीवन. तो वो वैल्यू करना लोगों को भी हमें फिर आने लगता है. आई थिंक ग्रेटिट्यूड हैज अ वेरी बिग. बहुत बार हम लोग ईगो में ना ग्रेटिट्यूड नहीं बोलते. मैंने ये बहुत नोटिस किया है. आई डोंट अंडरस्टैंड, इट्स सच अ सिली थिंग टू डू. कोई आपसे अच्छा काम कर रहा है, मैं तो उसको भी थैंक यू बोलती हूँ कि मैंने आपसे सीखा है. See, if you are spiritual and if you're not humble, I don't understand how it goes together then. Yeah? तो वो ग्रेटिट्यूड हमें, अगर हम लाइफ को एक कंपटीशन ना लेके ना, लाइफ को एक दूसरे के साथ जीने का मकसद बना ले, द होल वर्ल्ड विल बी सो ब्यूटीफुल, राइट? तो आई फील ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. Forgiveness is another thing without which you can't even have your self-realization actually. So forgiveness is very important, especially people who have hurt you in your way of understanding. उनको forgive करना बहुत मुश्किल हो जाता है. And you feel, oh, that person is very bad for me. Actually, no one is bad for you. If somebody has hurt you, you have learned something from that also, right? तो दैट इज एक्चुअली हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम बस अटेंशन अपना उस व्यक्ति को अपने चित्त से हटाते हैं. दैट इज फॉरगिवनेस फॉर मी. तो एक चीज जब घटना होती है ना हमारे साथ, हम उसको भूल नहीं पाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. तो हम लोग एक्चुअली जो शॉकिंग पीरियड होता है ना ह्यूमन माइंड में, वो थोड़े समय के लिए रहता है. लेकिन हम उसको आइडियाज बना बना के प्रोलॉन्ग करते हैं. वी से वी डोंट फॉरगिव, पर वो तो घटित हो चुका होता है ऑलरेडी. तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते. व्हाट यू कैन डू इज यू जस्ट फॉरगिव एंड मूव ऑन. मूव ऑन करना लाइफ में, इट इज अ वेरी बिग डील. नहीं, उसने मेरे साथ वैसा किया था, उसने किया होगा, उसके अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उससे गलती हो गई होगी, माफ कर दो. सो दैट इज अगेन अनदर चैलेंज वी शुड डू to ourselves कि कितना हम forgive कर सकते हैं. It is again a practice. And when you can forgive, compassion will automatically grow. It is like, ये समझना कि जो आप समझ रहे वो नहीं समझ पा रहा है, is compassion. So forgiveness, compassion, gratitude, it comes like a bunch. जब आप forgive करोगे, तभी आप compassion develop करोगे. And when you have compassion, you will forgive because you will understand that he's not able to understand right now. Of course, I'm not talking if you are wrong and you are not saying sorry. All those things I'm not talking about. I'm talking about your forgiveness towards other. Because if you are wrong, you should say sorry. And you should, apologize and move on. Says. Yeah, of course. Why But not? just... I don't know. वो जेंजी में ज्यादा देखा है मैंने. अभी एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि हार नहीं मानने का. ये क्या होता है यार? Yeah, it is okay. Right. It is okay to say sorry. It is actually very big-hearted people can say sorry. मुझे लगता है एक थॉट अगर अंदर हो ना कि हम्बल कैसे रहे, डाउन टू अर्थ कैसे रहे, तो ये बेस्ट वे है कि डाउन टू अर्थ रहना है ना, मतलब अपने माइंड को बताओ कि डाउन टू अर्थ रहना है ना, तो करो, ये करो, चीज करनी ही है, यू हैव टू डू इट. तो वो एक प्रैक्टिस में भी आ जाती है. वो तो एक एस्पेक्ट है, पर आई वुड ऑल्सो फाइंड रिस्पॉन्सिबल द सोसाइटी, द पेरेंट्स, the way the people are teaching others to compete.
It doesn't help you in any way to become happy or to become. Why you want to compete? You be yourself and you will definitely. मैंने आज तक नहीं देखा है जो इंसान हम्बल है और अच्छे से काम करता है, कुछ भी करता है, वो अपनी जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ कर ही लेता है। मैंने देखा ही है। और जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, पढ़ाकू होता है, उसको मैंने बहुत ज्यादा कुछ करते हुए नहीं देखा है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। मतलब नॉट सो सक्सेसफुल, अनहैप्पीनेस रह ही जाता है उनमें। तो वी हैव टू फॉरगिव ईच अदर ना, वी दैट्स हाउ अ सोसाइटी विल बिल्ड आल्सो। हमने पकड़ ही लिया, अरे उसने दोष किया, फिर आप सोसाइटी को कैसे हेल्प करोगे? आप तो तोड़ने में विश्वास करते हो, जोड़ने में नहीं। बट दीदी और एक चीज होती है ना कि फॉरगिवनेस में एक चीज होती है कि हम अगर कोई चीज को भूल जाए और किसी ने हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है और फिर से वो इंसान हमारे लाइफ में आना चाहता है, और अगर हम ये कहें कि फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव, ये अगर हमने रट लगा दी और हमें पता है वो इंसान सुधारने वाले में से तो है ही नहीं, वो तो गलती करेगा, और अरे अगर मेरे साथ ये हुआ है। तो वो तो गलत है ना। क्या गलत है? कि ये चीज गलत। उस इंसान को और एक चांस करके फिर अब हमारे इमोशन के साथ खेलते, ये तो गलत है ना। हाँ, गलत है। See, तो उस the thing is, forgiveness is never, forgiveness is a state of mind where you make yourself free from the thought that someone has hurt you. समझ रही हो? That is forgiveness. And then to have that compassion that, okay, he's in his process, she's in his process, whatever it is, whoever it is. In a process, I should have the compassion and understanding to just let it go. Forgiveness doesn't mean you accept what the person has done. Acceptance नहीं है. You let it go. अपनी शांति के लिए. वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है लाइफ में. बट वो पर्सन अगर आपके पास वापस आना चाह रहा है एंड दैट पर्सन यू नो विल नेवर चेंज, then you mix in a diplomatic way, in the sense that that is not the word, divine diplomacy I call it, that once you are forgiven you will not feel hurt again. अगर आपको अभी भी हर्ट महसूस हो रहा है, इसका मतलब आपने फॉरगिव नहीं किया है. अगेन यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ फर्स्ट फॉरगिविंग. जब आपको सच में फॉरगिविंग हुआ है, वो पर्सन आपके लाइफ में आना चाह रहा है, यू कैन गिव अ चांस, but you will be so detached about it. You will not have the same expectation. आपका एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा ना, कि आपको पता है वो इंसान दुखी देता है, लेकिन you be compassionate. You don't overdo what you did before. You learn from your mistake. You mix with that person in a very kind way, because you are peace. You practice peace. That's why. But of course, if the person is totally negative, then there is no question of giving a chance. You just kindly say, I'm not interested. Thank you so much. You don't have to be rude also, right? See, if we choose the right ways, we can do things. वो हम पे डिपेंड करता है, हम कितना प्यार, कितना कंपैशन, कितना फॉरगिवनेस डेवलप करते हैं. एंड ऑफ कोर्स समटाइम्स इट इज नॉट इजी एक्चुअली, बट वी ऑल लर्न. We call it divine diplomacy. You're not fake. You're not fake. You're not faking your relation. But you know how to handle it. मेरे साथ हुआ है ऐसा 2-3 बार लाइफ में. तो हाँ, सबके साथ होता है. Depends on the range. But I don't call them as negative. I call it a point of exam where I couldn't pass the first time. So the second time I passed. So it is a challenge. It is an exam. It is a learning process. Everything life gives you to learn. Like that, yeah. So अभी जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी वो स्पेशली यूथ के लिए, कि एक यूथ के लिए क्यों जरूरी है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, उनकी जिंदगी में क्यों जरूरी है? देखो,
यूथ के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूथ में ही हम लोगों को बहुत कुछ ऐसा लगता है कि हम जानते हैं, हम दुनिया को जीत लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, एंड इट इज़ वेरी ईज़ी टू मोल्ड a young bud, you know. So when you are young, you have so many influences coming in your life. And if you're not in the right way, you can be completely lost in that. So when you have a proper guidance of your own being, your spirit is talking to you, and you can feel yourself. Automatically, everything around you becomes very beautiful. So youth के लिए बहुत जरूरी है कि आप सहयोग मेडिटेशन करें, आप एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें उसको, सेल्फ रियलाइजेशन ले, and you practice preaching your spirit rather than something outside. क्योंकि हर इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ सिखाएगा, लेकिन आपका खुद का एक्सपीरियंस आपको स्पिरिट के कनेक्शन होने के बाद ही आपको समझ में आएगा अच्छे मोड पे. तो इसीलिए आई थिंक इफ यू प्रैक्टिस spirituality, especially if you practice Sahaja Yoga meditation, definitely you will feel that balance inside you, and you can preach more and more deep. Yeah. अभी हम एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे जिसका नाम है लाइटनिंग राउंड. Okay. What makes you sad? When I find people not happy around me. Mountain or beach? Both. Both. You have to choose one. Beach. Movie or sport? Movie. One best part of your profession? That I can connect hearts, and I can give my peace to others and the love I feel to others. Yeah. Who has made the most influence in your life? Shri Mataji. What makes you happy? I am happy when I see humanity trying to love each other. When there is no war, when there is unity and understanding of love and joy in everybody, when I see that we enhance each other's quality and not get jealous out of it and not feel challenged, makes me very happy. Yeah. One relationship advice? Which kind of relationship? Friendship, and second is married or married people. So for me, I feel friendship should be a relationship of complete honesty, without boundaries of religion, without boundaries of anything. Just nirvajya prem, you know. You love your friend because you love. And love means that, you know, whenever you correct each other also, it is out of love and not out of some kind of, you know, understanding or conditioning. So friendship is complete loyalty towards each other for lifetime. It's a beautiful relationship without any boundaries of understandings and, you know, preachings and stuff, and it should last forever. And you know, it's a love which is so beautiful without any selfishness. Yeah. So that is friendship for me. And marriage is a beautiful bond of relationship where you can live your life with a person who helps you to grow in every way, who is not jealous of your achievements, who is not having a competition or expecting you to do something for other. But it is again another aspect of Nirvajya Prem, where you grow together beautifully, like two branches in the same tree, and you meet and you give flowers and fruits. And it is such a beautiful. I think to have a very good marriage, you need to be very good friends. So it is both connected. Yeah. What does money for you?
Money. Money is a, uh, I would say money is a source. It's a needing thing in life to lead or acquire things, basic necessities. And if I want to give something to someone out of joy and love, then money is useful because I can buy through money things because that's how the world is running right now. So it is a tool of giving, expressing our love in a material way. That is money. Favorite country? Wow, very difficult questions. I've been to more than 50 countries. It is difficult to say favorite. That's why I'm I asking this. um, India, Bharat. Yeah. What's your daily routine? So I wake up and I do my needful in the bathroom, and then I meditate. And after meditation, we have nice breakfast with my husband. Sometimes we cook together, or sometimes I cook alone, or he cooks, depending on the mood. And then I I'm teaching music, or I'm doing some sales activity, or I'm planning my concerts or realization programs or tours. I'm also organizer. I have a foundation, so there's a lot of activity like that. So depending on the priority there, I do that. Uh, then almost the evening comes. I have some meetings and stuff. I mean, I'm talking about a daily day every day. But we always try to find time in between to give ourselves a little joy, a little happiness. And I personally, I can't do things in life which doesn't give me joy. I have noticed that since childhood. Now I have accepted this in me that I have to do things with my heart. Otherwise, I can't do it. So basically, I'm there because I'm doing it with heart. So it is fine. Like the day goes very well with the blessings of divine. And then, maybe sometimes we go out for a coffee, or maybe sometimes, I'm reading something nice, or maybe listening to Shrimataji's speech. And then, yeah, again, meditation, food soaking, and then walking. We take a walk in the night. And of course, in the middle, I cook. I love cooking. Yeah, So, yeah, I I love can cooking. see So, your cooking. मतलब आपको पहले से ही मतलब इंटरेस्ट था कि धीरे yeah, धीरे करके yeah. डेवलप हुआ है नहीं, मुझे ऐसे बचपन से इंटरेस्ट है. I want it to be, if I will be not a musician, I'll be a chef for sure. So दैट वी मुझे कैन बहुत सी इंटरेस्ट था. So I create new things every day. So I believe in having a day of creating something new and living it fully. I love to live life in its fullest form, whatever is possible and whatever is given to me by God in my boundaries. I love it. Yeah. and that's why thank you so much for inspiring us as a youth. That's really Thank you. important. Yes, yes, I think so. You can have little less, but you will be very happy. Can you please sing a song? Arre bapre. Okay. I would sing the same song I was giving example. I will sing that for you. कवाली क्योंकि आपकी कवाली Kavali. Okay. This is not a kavali, but it's like a Sufi song. Almost a kavali. But it's a Sufi song. It's a Sufi matlab साफ दिल से गाया हुआ. हाँ Yeah. So, hmm, पीड़न में सीने लावा मैं तो हस्तियां जावा धूप दे नल ढल ढल के मैं लबी अपनी छावा दुख भी अपने सुख भी अपने ये तो मैंने जाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नु ये समझाना तू बस झूम 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 हो
बस झूम 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 झूम, मैं दीवानी कुछ नहीं जाना, मस्त होके गावा, दुनिया राजी करके कमले, फिर भी चैन न आवा, जो है तेरा मिल जाएगा, करके कोई बहाना, दुनिया राजी करके कमले, फिर भी चैन न आना, तू झूम 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 झूम, हो तू झूम 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 झूम. Wow. Such a Don't worry, be meaningful. happy. That is the meaning. Yeah. Okay, so here we end the conversation. So thank you so much for giving us your so precious time and sharing such a pure knowledge with us. So once again, thank you so much, Anandita Didi. You're most welcome. It was also very beautiful to know you and, you know, to express many practicality of being. And I hope the youth will, take up to the life in a beautiful way and not follow the rat race and just be yourself. May God give you the strength to face the society, parents, whatever challenge you have. And, may you be strong enough to have the capacity to listen to your spirit. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you.